Hello guys, welcome to my YouTube channel Mentorgenics. I am back with another lecture about biological molecules, and for those who do not know me, I like to introduce myself. Myself is Sayyid Rahim Zawir, and I am not T for terrorist but B for biologist and biochemist. So today our topic of discussion is about carbohydrates, and it's from FSC part first chapter 2 named biological molecules. So these are very important biological molecules और उसकी importance अभी हम इस topic के अंदर इस lecture के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे. So what are carbohydrates? Carbohydrates are actually complex substances that on hydrolysis yield polyhydroxyaldehydes और कीटोन सबयूनिट्स. यानी कि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जब इनकी ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोलिसिस के थ्रू. नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इट कम्स फ्रॉम हाइड्रो मीन्स वाटर, lysis means break down. It means water is broken down in this process into protons and hydroxyl group, and this breakdown will help to break a complex substance into simpler ones. It is opposite of condensation, dehydration, synthesis, another chemical reaction that we will study later. So on hydrolysis, these compounds can either produce polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. So these are organic compounds, obviously. Polyhydroxyaldehydes means these are organic compounds. These are molecules that have many hydroxyl group with aldehyde as their functional group. So polyhydroxy means they are containing two or more hydroxyl groups. At least there should be two hydroxyl groups, and either they can be broken down into polyhydroxyketones. Like these are chemical compounds having ketone or carbonyl group as a functional group and two or more hydroxyl groups. So this is the definition. You have to memorize this and you have to write in the paper if question comes about the definition of carbohydrates. So obviously we have read it in the last topic that they are source of energy, that the immediate source of energy. So whenever you feel faint or you are out of energy, you should utilize carbohydrate or glucose. So they are present in every organism. कोई भी ऐसा सेल या ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो, क्योंकि इसके बगैर लाइफ नहीं है. और हर ऑर्गेनिज्म में तो मौजूद है. इट इज़ इवन इन एवरी पार्ट ऑफ सेल. जैसे आप सेल की मेम्ब्रेन देख लें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और जो उसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है. तो कार्बोहाइड्रेट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है. नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, एटलीस्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एटम्स. वन इज कार्बन, अदर इज हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन. एंड द लिटरल मीनिंग लाइक देयर लफ्जी मतलब इनका है हाइड्रेटेड कार्बन्स. नाउ व्हाट डज हाइड्रेटेड कार्बन्स मीन? It means that if the ratio of hydrogen and oxygen is same as of water in a substance, it would be known as hydrated carbon, because these compounds are having carbon और इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो वाटर जैसी है. अब ये समझ में जा रहा है, समझ तो आ गया, लेकिन ये कैसे, मतलब किसी एग्जाम्पल से पता चलना चाहिए कि किस तरीके से ये हाइड्रेटेड कार्बन्स कहलाते हैं. अब आप देखेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का भी है, ग्लैक्टोज का भी, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, फिलहाल हम इस कार्बन 6 को भूल जाते हैं. इस ब्रैकेट में हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, और इसके ब्रैकेट के बाहर 6 कॉमन हमने ले लिया. तो आप देख सकते हैं कि जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होती है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है. सिमिलरली ये द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है. तो ये सिंपलेस्ट हैं. जो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसमें मिनिमम 3 कार्बन होता है. अब देखें यहाँ 3 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम हैं. अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करें और अगेन हम कार्बन को छोड़ दें और ब्रैकेट में देखें H2, वही रेशियो है प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन की जो कि वाटर के अंदर होती है, इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहा जाता है. फिर हम आ जाते हैं इसके जनरल फार्मूला पर. अब इसका जनरल फार्मूला है CH2OY.
और इसमें x जो है वो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम वो मैनी थाउजेंड्स भी हो सकता है। इस तरह जब y इसके अंदर है तो y जो है वो 3 से स्टार्ट होगा और मैनी थाउजेंड्स तक वो भी जाएगा। अब x और y सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। नो सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है जी प्लांट्स सिंथेसाइज दीज कार्बोहाइड्रेट्स बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देख सकते हैं कि सनलाइट को यूज करता है प्लांट, वाटर को यूज करता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट तो बना लिया, अब प्लांट के बाकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे? मैंने तो खैर कभी नहीं देखा कि कोई पौधा जो है वो गोश्त खा रहा हो या वो चिकनाई खा रहा हो या कोलेस्ट्रॉल खा रहा हो। तो प्लांट्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और फिर इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं। फिर जनरली इनके एग्जांपल्स क्या है, इनका रोल क्या है देखें, जैसे वुड है, कॉटन है, पेपर है, इसके अंदर जो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड में आता है। इस तरह सीरियल्स और जो रूट ट्यूबर्स हैं उसके अंदर जो स्टार्चेज होते हैं वो जब सीरियल हम खाते हैं हमें मिठास महसूस होती है तो एक्चुअली स्टार्च की ब्रेकडाउन की वजह से होता है। केन शुगर है, गन्ना आप खाते हैं आपको मीठा महसूस होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। मिल्क शुगर है, मिल्क यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो वो मिठास फील होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। सो कार्बोहाइड्रेट्स के नेचर में स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है। अब इससे क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल रोल की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज मेक्स अप द सेल वॉल ऑफ प्लांट एल्गी। सिमिलरली काइटन मेक्स द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो ये स्ट्रक्चरल रोल्स हैं। फंक्शनल रोल्स दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे ग्लूकोज है सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स that are formed by combination of molecules that belong to two different categories. These are conjugated molecules. So conjugated molecules में carbohydrates combine करते हैं लिपिड्स के साथ, बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ, बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हेल्प करते हैं? हमारी बुक में मेंशन है कि दे परफॉर्म 3 डिफरेंट रोल, 3 जनरल रोल्स। वन इज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लाइक सेल के बाहर एक मटेरियल होता है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि सेल को सपोर्ट करने के लिए कुछ मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एनिमल सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये बनाता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में भी इसका रोल है। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है या डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन है, उनको भी बनाने में इसका रोल है। तो इनके बगैर ये मेम्ब्रेन्स नहीं बन सकती। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 main classes of carbohydrates. One is monosaccharide, other is oligosaccharide, third one is polysaccharide. So mono means one, saccharide comes from a Greek word saccharon which means sweet. Monosaccharide, 1 unit. Oligo means few, oligosaccharide few units, polysaccharide means many units. In oligosaccharide, monosaccharide range is between 2 monosaccharides up till 10 monosaccharides. And in polysaccharides the range of the number of monosaccharides increases, and polysaccharides start from when 20 different monosaccharides or 20 similar monosaccharides are combined together to form a molecule. So then it is known as polysaccharide. So now पहले हम पढ़ेंगे monosaccharides को. What are monosaccharides? So here is the definition. These are polyhydroxy aldehydes or ketones. यानी कि इनमें ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें एल्डिहाइड है लेकिन उनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इनके पास बहुत सारे यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और इनके पास कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप के अलावा इनके पास जो अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उसके पास बहुत सारे यानी 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। जिस शुगर के पास एल्डिहाइड होगा उसको एल्डोस बोलते हैं, एल्डो शुगर बोलते हैं। जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसको कीटो शुगर या कीटोन बोलते हैं। These are the simplest sugars. You cannot perform hydrolysis on it. जैसे हम चीनी खाते हैं, चीनी मोनोसेक्राइड नहीं है, चीनी ओलिगोसेक्राइड। हम जैसे जुबान पे रखते हैं वाटर ऐड होता है, फौरन से वो ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज और हो जाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज से आप ऐसे नहीं कर सकते। You can break glucose into simpler monosaccharides but not by hydrolysis. You can do it, you can perform it by enzymatic reaction, and that we will study in chapter 11 in detail. मोनोसेक्राइड्स आर द स्वीटेस्ट, बहुत टेस्टी हैं, ज़रा जो भी टेस्ट आता है इनकी वजह से आता है, और वाटर सॉल्युबल है। अब इसमें जितने भी कार्बन्स हैं उन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्ट 1। जैसे ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो 6 कार्बन है,
1 2 3 4 5 6। अब 6 में से एक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, उसके पास ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। बाकी जितनी कार्बन हैं उनके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो 6 में से 5 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, एक के पास फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एल्डो शुगर है। नाउ हम देखते हैं फ्रुक्टोज को, ये कीटो शुगर है। इसमें कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से एक के पास फंक्शनल ग्रुप है, बाकी जो 5 हैं इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये फ्रुक्टोज के एग्जांपल। तो मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन का है अगर, तो एक के पास फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी 2 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। अगर 4 कार्बन का है तो एक के पास फंक्शनल ग्रुप होगा, 3 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। मोनोसेक्राइड्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन की रेंज में जो मॉलिक्यूल आते हैं वो मोनोसेक्राइड्स में। इनका जनरल फॉर्मूला है CH2ON। तो N जो है, यू शुड नॉट कंफ्यूज दिस N विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है मोनोसेक्राइड में, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी भी मोनोसेक्राइड का, चाहे वो 3 कार्बन है, चाहे वो 4 कार्बन है, चाहे वो 5 कार्बन। सो ये टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं। ट्राइओज मीन्स इट हैज़ 3 कार्बन एटम्स। अगर इसके पास एल्डिहाइड है तो एल्डो शुगर है, इसको एल्डो ट्राइओज बोलेंगे। अगर कीटोन ग्रुप है तो ये तो ज़ाहिर है वो कीटोज है, तो इसको कीटो ट्राइज बोलेंगे। फॉर्मूला है जी C3H6O3। एग्जाम्पल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, हाइड्रोक्सीसीटोन। टेट्रोज है, बहुत रेयर है नेचर में, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। 4 कार्बन है, एल्डो शुगर भी हो सकती है, ये कीटो शुगर भी हो सकती है। इसका फॉर्मूला है C4H8O4। इससे एग्जाम्पल है एरिथ्रोलोज। पेंटोज है, 5 कार्बन होते हैं। एल्डो शुगर है तो एल्डो पेंटोज, कीटो शुगर है तो कीटो पेंटोज। फॉर्मूला C5H10O5। एग्जाम्पल है राइबोज, राइबोलोज, डीऑक्सी राइबोज। हेक्सोज है जी, 6 कार्बन एटम्स। एल्डो शुगर भी हो सकती है, ये कीटो शुगर भी हो सकती है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। एग्जाम्पल्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे आपस में आइसोमर्स। अब जो पेंटोज और हेक्सोजेज हैं ये बड़े कॉमन है नेचर में। हेप्टोजेज ये भी बड़े रेयर है नेचर में। 7 एटम्स होते हैं कार्बन के। एल्डो शुगर होगी तो एल्डो हेप्टोज, कीटो शुगर होगी तो कीटो हेप्टोज। फॉर्मूला है C7H14O7। और हेप्टोलोज इसकी एग्जाम्पल है, लिखी इसलिए नहीं है चूँकि ज़ाहिर बुक के अंदर नहीं लिखी तो इसलिए मेंशन नहीं की। सुनाओ, एक कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों के, सर इस जो लीनियर स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़े पीछे, इसको ड्रॉ कैसे करें? तो उसके सिंपल सा एक तरीकाकार है। देखिए, राइट कार्बन वर्टिकली, और यानी कि 1 2 3 4 5 6, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में डायग्राम के अंदर देखा है, इस तरह से उसको ड्रॉ करें। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है। फर्ज करते हैं जी वो ग्लूकोज है, तो ज़ाहिर उसमें 6 कार्बन है और ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। तो अब हमने एल्डिहाइड ग्रुप मेंशन करना है फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। बाकी रह गए 5 कार्बन, तो बाकी 5 कार्बन के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। लेकिन चूंकि ग्लूकोज है, इसमें एक कह लें एक्सेप्शन है कि पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, तीसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, चौथे कार्बन पे राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5वें कार्बन पे भी राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और छठे कार्बन पे भी राइट साइड पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिर्फ कार्बन 3 पे रिवर्स जाता है, उसकी रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और कार्बन के चूंकि आपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे आप हाइड्रोजन आटम लगा देंगे, ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से चेन बनानी है। तो अब इसमें एक रूल है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एंड ऑफ चेन पे आता है, या फर्स्ट में आएगा या लास्ट में आएगा, जबकि कीटोन ग्रुप जो है वो चेन के इन बिटवीन आएगा। तो इन रूल्स को यूज़ करें और आप कोशिश करें कि राइबोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के लीनियर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। अब जो ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स हैं जब वो सोल्यूशन में जाते हैं तो वो रिंग फॉर्म में चले जाते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर आप देख लें, जैसे ये डाइहाइड्रोक्सीसीटोन का ये कीटोज है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये एल्डोज है, इसमें बिटवीन द चेन कीटोन ग्रुप आ रहा है, इसमें स्टार्ट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। इसी तरह आप ये देख लें, डी ग्लूकोज में पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, राइबोज में पहले कार्बन के साथ, क्योंकि एल्डोज शुगर है, फ्रुक्टोज ये कीटोज शुगर है, इसमें पहले के साथ नहीं है, ये बिटवीन द चेन इसके अंदर आ जाता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये सोल्यूशन में जाते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे कि ग्लूकोज है, जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। सो पायरानोज कम फ्रॉम पायरान। पायरान मीन्स 6 कॉर्नर रिंग, नॉट 6 कार्बन रिंग, 6 कॉर्नर रिंग। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉर्नर हैं। इसमें 6 कार्बन भी हैं लेकिन एक कार्बन चेन से
बाहर है। इसी तरीके से जब राइबोज सोल्यूशन में जाता है तो ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं राइबोफ्यूरानोज। तो फ्यूरानोज कम फ्रॉम फ्यूरॉन, it means 5 cornered ring, again not 5 carbon ring, 5 cornered rings. So here are the 5 corners, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह एक कार्बन इसके बाहर आ जाता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है। अब होता ये है कि जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना तो ये जो हाइड्रोक्सिल है ये बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि जब हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आ जाएगा तो रिपल्शन होगी इन दोनों की तरफ, इसलिए हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। इसलिए जब हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन 3 का, ये हम ऑपोजिट साइड पर लगाते हैं। सो ग्लूकोज फ्री स्टेट में सारे फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ग्रेप्स के अंदर है, अंगूरों में, फिग्स में जिसे अंजीर बोलते हैं, डेट्स, खजूरों के अंदर। और ब्लड में ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.08%। और ये कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद है नेचर में, इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन सब के अंदर। ये बनता कैसे है, जैसे हमने पीछे पढ़ा फोटोसिंथेसिस से। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है, carbon dioxide plus water combines in the presence of light and chlorophyll, and glucose and oxygen is formed. So in this process, the whole process, 6 carbon dioxide molecules are combined with 6 water molecules in the presence of light and chlorophyll and forms 1 molecule of glucose and release 6 molecules of oxygen. लेकिन ये इतनी simplified नहीं इक्वेशन नहीं है, ये इतनी सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है। इसके हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। लंबा प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ समराइज करने के लिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। सो तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ये जो सोलर एनर्जी है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ग्लूकोज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और उसकी ऑक्सीडेशन से वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कुछ एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि डेली आपको कितनी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितनी शुगर चाहिए। इट रेंजेस बिटवीन 225 to 325 ग्राम, इससे कम भी ना ले, इससे ज़्यादा भी ना ले। और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मत खाएं, चीनी से परहेज़ करें, कोशिश करें, क्योंकि वायरसेस फीड ऑन ग्लूकोज। आपको तो लगता है कि हम बहुत कैंडीज खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, टेस्ट बड्स हमारे बहुत खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पीने पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वायरसेस आपकी बॉडी में इस पर खुश हो रहे होते हैं, आपको बेवकूफ़ी पे हंस रहे होते हैं कि ये बंदा हमारा पेट भर रहा है। तो इसलिए ज़्यादा ग्लूकोज से परहेज़ करें। ज़रूर खाएं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इसकी रेंज 325 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पास पेपर्स में आ चुके हैं, मसलन इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन रावलपिंडी में आया था, किस में होता है जी, डेट्स में। मोनोसेक्राइड्स विच आर रेयर इन नेचर एंड अकर सम बैक्टीरिया, हमने पढ़ा हुआ है ये बीटा टैट्रोज। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे हमने पहली स्लाइड में किया था कि केमिकल कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस आइदर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ऑब्वियसली प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। What are monosaccharides? These are polyhydroxyaldehydes और कीटोन्स। एंड उसमें आप थोड़ा सा डिटेल लिख दें, मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन को थोड़ा मेंशन कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन? 0.08% हम पढ़ चुके हैं। नाउ अगेन ऑल गुड थिंग्स फॉर दोज हु थिंक, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। मेरे तो क्वेश्चन है, फॉर विच कार्बोहाइड्रेट्स एक्स एंड वाई आर सेम एंड डिफरेंट रिस्पेक्टिवली। ये आपने सर्च करना है और आंसर करना है उसमें कमेंट सेक्शन में। आपका आंसर ठीक होगा तो मैं उसे लाइक कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। सेकंड है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट एल्डोज फ्रॉम कीटोज रिटन ऑन अ पेज? अगर एक पेज पे लिख दिया जाए कि एरिथ्रोज और एरिथ्रोज है और मैं आपसे पूछूं कि आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये एल्डोज है और ये कीटोज है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं। जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ में जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं, तो वाइवा के अंदर ये चीज़ें वो आपसे पूछी जाएंगी, तो इसलिए ये टेक्निकल चीज़ें जो आनी चाहिए। सो इस रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इफ यू डेयर टू अटेम्प्ट देम। नंबर 1, मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड इज, 4 ऑप्शन है, अल्फा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, बीटा है, राइबोलोज, चार्ली है, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, डेल्टा है, सेलुलोज। सेकंड है, फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड इज डैश किलो कैलोरी। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में से आपने रिकग्नाइज करना है। तीसरा है, नंबर ऑफ एटम्स दैट आर आउटसाइड रिंग ऑफ राइबोफ्यूरानोज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो 2, 3, 1, 5 में से आपने एक सेलेक्ट करना है। चौथा है, कार्बोहाइड्रेट दैट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल, ये भी मैं अभी शुरू में आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगेन इन चारों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर ठीक होंगे तो लाइक कर दूंगा, अगर नहीं हो तो मैं इसको रेक्टिफाई कर दूँगा। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।